Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing well. Now I'm going to start with chapter number 6, lecture number 1. Chapter name is regression. Students, in this chapter I will discuss the relationship between two variables, and two variables are one is independent variable and other is dependent variable. तो दोनों variables के दरमियान में students हम relationship को measure करेंगे. तो students आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें. Let's start the topic regression. In this lecture, students, I will discuss the introduction about the regression. The contents of this lecture's first point पे students मैं explain करूँगा introduction about the regression. Second point मेरा alternative names of regression variables होगा, और second point, third point में मैं इसकी relative term scatter diagram को discuss करूँगा about regression, और last point importance of scatter diagram है. तो these are the 4 points I will discuss in this lecture. First of all, I will explain the brief introduction about the regression. Regression is a process by which we estimate the value of dependent variable on the basis of the one or more independent variables. In this chapter, students, I will discuss the two variables. One is the dependent variable and other one is the independent variable. दो variables के दरमियान में हम लोग relationship को measure करेंगे और estimate करेंगे value of dependent variable on the basis of the independent variable. For example, y is dependent variable and x is independent variable, then the relation described by a straight line y equals to a plus bx. तो इसके दरमियान में जो हम लोग रिलेशनशिप जो है वो डिस्क्राइब करेंगे, मेजर करेंगे, विच इज़ द y equals to a plus bx. It is a straight line and it is also called a linear relationship between x and y. For example, the relation between Celsius and Fahrenheit scale temperature given by F equal to 32 plus 1.8 x is a linear relationship. This is the example of the linear relationship between two variables for Celsius and Fahrenheit scale. तो students, हम लोग दो variables के दरमियान में relationship जो है वो measure करेंगे by a straight line. If y is to be estimated on the basis of x, अगर हम y को estimate कर रहे हैं x की behalf पे, we call this equation y equals to a plus bx, the regression equation y on x. तो इस equation को हम लोग जो है वो y on x कहेंगे, जिसमें हमारे पास y जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और p जो है वो हमारे पास इसकी एक स्लोप होगा जो इसके रिलेशनशिप को मेजर करेगा y का x के साथ, और a जो है वो हमारे पास y इंटरसेप्ट होगा, विच इज़ द y इंटरसेप्ट, जो कि एक्सप्लेन करेगा व्हेन आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू अगर 0 होगी है तो फिर वो एक्सप्लेन करेगा y को इक्वल टू a. ऑन द अदर हैंड, इफ x इज टू बी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ y, अगर हम x को एस्टिमेट करना चाहते हैं y के बिहाफ पे, तो वी कॉल दिस इक्वेशन that is x equal to c plus dy. तो ये हमारे पास इक्वेशन होगी, that is also the linear relationship between x and y. और इसके कांस्टेंट्स जो मैंने यूज़ किए हैं a, c and d, ये आपके पास जो है दो कांस्टेंट्स हैं, इसकी वैल्यूज़ को हम एस्टिमेट करेंगे, और द रिग्रेशन लाइन या रिग्रेशन इक्वेशन इज कॉल्ड एज x on y. तो इसको हम लोग जो है वो x on y के नाम से जो है वो राइट करेंगे, x on y that is the x equal to c plus dy. तो स्टूडेंट्स, आपके पास दो इक्वेशंस होंगी इस चैप्टर के अंदर. एक आपके पास y equals to a plus bx, that is the regression equation y on x, जिसमें आपके पास y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x जो है वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और ये आपके पास एक लीनियर रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करेगा. और दूसरी क्वेश्चन जो है वो आपके पास x on y होगी, जिसको मैंने डिनोट किया है x equal to c plus dy. दिस इज द रिग्रेशन लाइन x on y, और ये एक्सप्लेन करेगा आल्सो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स x and y, जिसमें y जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. The second point of this lecture is alternative name of the regression variables. The following alternative names or terms of the dependent variable y are. फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग यूज कर सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए द रिवर्ट रिग्रेसेंट. सेकंड टर्म जो है वो द प्रिडिक्टेंट. थर्ड वन इज द रिस्पांस वेरिएबल एंड फोर्थ वन इज द एक्सप्लेन वेरिएबल्स. और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए नेम्स यूज करेंगे या टर्म्स यूज करेंगे, अल्टरनेटिव नेम्स और टर्म्स, दैट आर, first one is the regressor, second one the predictor, the response variable, and the last one is the explanatory variables. तो ये terms जो है वो use की जा सकती हैं for dependent variable y and independent variable x के लिए. तो आपके पास जो है there are the four other names of the dependent variable y and independent variable x. तो students, ये आपको जो है वो याद होनी चाहिए. These are the terms used for dependent variable y and x. In this introductory type lectures, I will discuss the third point, that is the scatter diagram. The scatter diagram, a graph of pairs of observations on two variables
is called scatter diagram. तो जब हम लोग सबसे पहले दो वेरिएबल्स का डेटा अगर आपको गिवन है और उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अगर हम करते हैं तो वो हमारे पास जो है वो होगा डेट इज द स्कैटर डायग्राम. सपोज दैट x1 x2 so on xn denote the height of the n individuals and y1 y2 and so on yn the corresponding weights of the n individuals. तो हमारे पास यहाँ पे अगर दो वेरिएबल्स का डेटा है x और y और आपके पास x जो है वो आपके पास स्टूडेंट्स की हाइट है या इंडिविजुअल्स की हाइट है और y जो है वो हमारे पास वेट्स है इंडिविजुअल्स का और ये हमारे पास जो है वो पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस हैं. इफ वी प्लॉट द पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस x1 y1 first pair, second pair is the x2 y2 and so on the last pair n pair, nth pair is the xn yn on the graph. अगर हम इसको पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस को जो है वो प्लॉट करें ग्राफ पे, द रिजल्टिंग सेट ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड अ स्कैटर डायग्राम. तो वो हमारे पास एक डायग्राम जो होगी जिसको हम लोग कहेंगे दैट इज द स्कैटर डायग्राम. These points are plotted on a rectangular coordinate system taking the independent variable x on x-axis and the dependent variable y on the y-axis. तो x एक्सिस और y एक्सिस पे हम लोग प्लॉट करेंगे अपने दोनों वेरिएबल्स को. x एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को शो किया जाएगा और y एक्सिस पे आप अपना डिपेंडेंट वेरिएबल को शो करेंगे और देन फिर दोनों जो आपके पास पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट इंडिविजुअल की हाइट एंड वेट दोनों को प्लॉट करेंगे. देन फिर हम सेकंड इंडिविजुअल की हाइट एंड वेट को प्लॉट करेंगे. तो डॉटेड फॉर्म के अंदर हमारे पास एक डायग्राम जो है वो शो हो जाएगी दैट इज कॉल्ड स्कैटर डायग्राम. तो स्कैटर डायग्राम जो है वो आपके पास that is the graphical presentation of two variables x and y, that is the paired number of observations of an individuals. Graphical presentation of the scatter diagram. In the first diagram students on x-axis पे आपने x variables को show करना है और y-axis पे हम लोग y variable को show करेंगे और आपने अपने दोनों pairs of observations को जो है वो with dots के साथ जो है यहाँ पे मैंने display किया है और ये आपके पास जो है वो paired observations की observations हैं x1 x2 y1 y2 and x3 y3 and so on xn yn. और यहाँ पे जो है एक लीनियर रिलेशनशिप जो है वो डेवलप किया है जिसको लाइन के साथ शो किया है. दिस इज y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स. पॉजिटिव एंड लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y. और राइट साइड पे आप देखें तो यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप बन रहा है बाय यूजिंग द एक्स वाई पेयर्स का जो आपके पास डॉटेड स्कैटर डायग्राम है उससे हमने इसको डायग्नोज किया है कि यहाँ पे हमारे पास जो है एक नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप है y इक्वल्स टू a माइनस बी एक्स जिसमें हमारे पास स्लोप जो है वो नेगेटिव है. और सिमिलरली यहाँ पे अगर आप लोग लेफ्ट साइड पे देखें तो ये नेगेटिव एंड नॉन लीनियर जिसमें एक कर्वी लीनियर जो है वो आपके पास रिलेशनशिप है जो कि डायग्नोज किया गया है जिसको इन्वेस्टिगेट किया गया है बाय यूजिंग द स्कैटर डायग्राम. स्कैटर डायग्राम से जो पॉइंट्स आपने डॉट्स जो है पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस के यहाँ पे प्लॉट किए हैं उससे हमें एक जो है वो इसकी एक कर्व टाइप की जो है वो रिलेशनशिप जो है वो हमें यहाँ पे जो है फाइंड मिल रहा है और विच इज़ द नॉन लीनियर और नेगेटिव है. और उसके बाद लास्ट पॉइंट पे राइट साइड पे आपके देखें तो आपके पास जो है दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में जो है वो कोई रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो रहा. तो ये आपके पास स्कैटर डायग्राम जो है एक ऐसी डायग्राम है जिसमें हम लोग जो है वो उसकी जो है रिलेशनशिप को जो है वो मैयर कर सकते हैं और हम बता सकते हैं कि हमारे पास इसमें अप्रॉक्सीमेटली क्या रिलेशनशिप जो है बिटवीन टू वेरिएबल्स जो है एक्स एंड वाई जो है वो डेवलप हो सकता है. तो एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपने शो करना है और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल को और आपने इसको डायग्नोज करना है उनके रिलेशनशिप को बिटवीन टू वेरिएबल्स के दरमियान में. और हम लोग कंसिडर करेंगे इस चैप्टर के अंदर जो है वो लीनियर रिलेशनशिप को कंसिडर करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स एंड y इक्वल्स टू a माइनस बी एक्स को. Now students, in last point I will discuss the importance of the scatter diagram. In the importance of scatter diagram, making a scatter diagram and drawing a line or curve is the primary investigation to assess the type of the relationship between the variables. तो scatter diagram students very helpful to investigate the relationship between two variables. हम लोग इसमें diagnose कर सकते हैं कि कौन सा relationship जो है उनके दरमियान में develop हो रहा है उसके according कौन सा model जो है mathematical model जो है वो use किया जा सकता है या mathematical equation जो है वो use की जा सकती है उसको estimate करने के लिए further analysis करने के लिए. The information from the scatter diagram can be used for further analysis of the data. There are quite complicated diagrams and it is difficult to choose a proper mathematical models for representing the original data. The scatter diagram gives
and indications of appropriate model which should be used for further analysis with the help of the method of least care. तो मेथड ऑफ लीस्ट केयर अगर हमारे पास के दरमियान में रिग्रेशन एनालिसिस का जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं रिग्रेशन का, इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स का डेटा है और उसमें डेवलप कर रहे हैं हम लोग जो है वो एक लीनियर रिलेशनशिप को जो है हम चेक कर रहे हैं y और x के दरमियान में, और उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे स्ट्रेट लाइन को एस्टिमेट करने के लिए मेथड ऑफ लीस्ट केयर को यूज़ करेंगे। उसकी मदद से हम लोग जो है वो उसका एक मॉडल जो है वो डेवलप करके देन फिर हम लोग फाइंड करेंगे उनके अननोन्स को A B C and D को। तो दिस इज द ब्रीफ इंपॉर्टेंस ऑफ द स्कैटर डायग्राम। तो स्कैटर डायग्राम जो है स्टूडेंट्स आपके पास एक हेल्पफुल है टू इन्वेस्टिगेट करने के लिए विच टाइप ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। Basically, students, this type of lecture is the introductory type lecture of chapter number 6 regression, जिसमें मैंने डिस्कस किया रिग्रेशन को, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द रिग्रेशन और इसके रिलेटिव टर्म्स को डिस्कस किया, स्कैटर डायग्राम को डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक ज़रूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।